So in the last class we were talking about the two concepts. One is the rotating magnetic field and another how it is being used for induction machine. So we have started with the construction of the induction machine. I have already told you that when a three-phase supply is given to a three-phase distributed winding, okay, what will happen? What will happen? A rotating magnetic field is produced. Okay, do you agree or not? And what is the characteristics about this rotating magnetic field? इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है कि ये जो मैग्नेटिक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का है और कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करता है, ठीक है। और वो कांस्टेंट स्पीड क्या है हमारी? वो कांस्टेंट स्पीड क्या है हमारी? 120 F/P. Okay, and that is speed is called synchronous speed. And what is the constant amplitude? 3/2 phi m. The resultant amplitude is this much, and it rotates continuously. Is it clear? So the same concept is here in our induction machine. So before proceeding, how it produces the necessary torque, क्योंकि ये फील्ड हुआ है, अभी रोटर अभी रोटेट नहीं हुआ है, लेकिन ये फील्ड कैसे मदद करता है हमारी मोटर को रोटेट करने के लिए वो अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। कंस्ट्रक्शन एज द नेम सजेस्ट, व्हाट आर दैट? इट हैज अ स्टेटर. Now what a stator consists of? A stator consists of an laminated core, okay, which has the slots on its inner periphery. Slots on its inner periphery. And in this slots is a, now why it is being done lamination? In order to reduce the eddy current losses. Is it clear? Now stampings are there of 0.5 to 0.4, I think so it is, I may write here, stampings. Now how lamination is being done, you know this? Lamination कैसे करते हैं मालूम है आपको? ठीक है, जैसे एक सॉलिड पीस लिया आपने, ठीक है, मान लो ये जैसे सॉलिड पीस है, ठीक है, इसको लेमिनेशन बनाना है तो लेमिनेटेड करना, क्या करूंगा मैं, इसकी पतली 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 स्लाइड्स काट दूंगा, ठीक है, और फिर उसको ग्रीस से या वार्निश से इसको मैं कंबाइन कर दूंगा, तो ये मेरा क्या हो गया? लेमिनेटेड स्ट्रक्चर। ये क्या हो गया मेरा? लेमिनेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसी प्रकार हमने कोर के इस प्रकार स्टैंपिंग्स बनाए, ठीक है, जिसमें इनर पेरिफेरी पे क्या है? स्लॉट्स। क्या है? स्लॉट्स। Is it clear? And these stampings are of 0.4 to 0.5 mm thick. Is it clear? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद स्टेटर में क्या अकोमोडेट की जाती है? थ्री फेज वाइंडिंग, जो हमें स्टेटर वाइंडिंग कहेंगे. व्हाट विल टेल देम, व्हाट विल कॉल देम? स्टेटर वाइंडिंग. इज इट क्लियर? नाउ दिस the stator is clear, it is stator winding is clear. Now next come the rotor. The rotor is of cylindrical shape. Of which shape rotor is? रोटर का शेप क्या होता है? सिलेंड्रिकल. इज इट क्लियर? लेकिन सिलेंड्रिकल तो होता है, लेकिन ये दो प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन. वन इज स्क्विरल केज, गिलहरी का पिंजरा की तरह दिखता है, और दूसरा जिसमें स्लिप रिंग यूज होते हैं. इज इट क्लियर? तो हम जनरली जो यूज करते हैं फॉर ऑल applications, most of the application we go for squirrel cage. Is it clear? Now both winding, that is stator winding and rotor winding, both carry which type of current? Alternating current. Okay, and the we supply alternating current to the stator winding in case of motor, and also due to induction effect, what happens? Alternating current is produced in the rotor also, rotor winding also. Is it clear? So as I have already told you that every machine has some character. Every machine, electrical machine, either DC machine or AC machine, can operate as a motor as well as a generator. As a generator, the performance of this induction machine is not satisfactory. The performance of induction machine as a generator is not satisfactory. That is why we seldom use induction generator. We generally, for alternator purpose, for generating AC electricity, which we go for, which machine we go for? हम कौन सी मशीन यूज करते हैं बताया था कल मैंने आपको? सिंक्रोनस जनरेटर. सिंक्रोनस जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? जिन्होंने जनरेटिंग स्टेशन पे, जनरेटिंग स्टेशन हमारे राजस्थान में कितने हैं ये आप एक एक्सरसाइज करेंगे.
you will identify how many generating stations are there. Okay, एक तो हमारे उदयपुर संभाग में भी एक जनरेटिंग स्टेशन है, किसी को मालूम है? संभाग कह रहा हूं, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं कह रहा हूं। अब तो वो शायद संभाग अलग हो गया है, ठीक है। बांसवाड़ा का नाम सुना है सभी ने, ठीक है। वहां पे माई हाइड्रो पावर प्लांट है। क्या है? माई हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है। वी हैव अ विजिट ऑल्सो, एंड इफ यू विल वांट वी कैन हैव विजिट फॉर योर क्लास ऑल्सो। सो देयर हाइड्रो पावर प्लांट इज देयर। किससे? पानी से। कौन सी नदी है वहां पर? कौन सी? माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी। तो माही नदी को एक डैम के थ्रू पानी इकट्ठा किया जाता है और फिर जो हाइड्रो पावर प्लांट का जो एक स्ट्रक्चर होता है वहां पे खड़ा किया हुआ है, वो बांसवाड़ा के और उसके आसपास के एरिया को बिजली देता है। समझ में आया कि नहीं? सो नाउ एज ए जनरेटर इज परफॉर्म्ड, हाउएवर इट इज एक्सटेंसिव यूज एज अ मोटर। जो इसका मेन एप्लीकेशन है इंडक्शन मशीन का, वो कैसे? ऐसे मोटर के फॉर्म में। कहाँ कहाँ यूज होती है? फॉर कॉमर्शियल पर्पस, फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस एंड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर में जो ट्यूबवेल में मोटर लगती है वो कौन सी होती है? 3 फेज इंडक्शन मोटर। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। उसके बाद इसको एसिंक्रोनस मशीन भी कहते हैं। ये तो मैं समझा चुका हूं, बिकॉज द रोटर डज नॉट रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, तो इसका नाम क्या है? एसिंक्रोनस मशीन। अरे समझ में आया कि नहीं आया ये चीज? Next, so a picture is 10,000 powerful than words. So from picture it is clear that these stampings, this is the core, and the core, on this core there is a iron frame is there, okay, to accommodate it, to provide it safety, to provide it toughness and everything in this. And in this core is accommodated what? Your 3-phase winding, and these 3-phase windings are in space displaced by 120 degree. So this is a distributed winding, and these 3 phases are coming 1 R Y B. Are you getting my point? This is clear? अरे ये clear है कि नहीं है? ठीक है। So what happens when a 3-phase supply from external source, किसी बाहरी सोर्स के द्वारा जब इसको 3-phase सप्लाई दी जाती है इस वाइंडिंग को, तो क्या प्रोड्यूस होगा? रिवॉल्विंग और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। इज इट? और वो फील्ड कहाँ होगा? ये एयर गैप में। कहाँ होगा भाई? ये हमारे हो गया स्टेटर वाइंडिंग, कोर और स्टेटर वाइंडिंग। बीच में क्या होगा? रोटर, और इसके बीच में क्या कहलाएगी? एयर गैप। क्या कहलाएगी? एयर गैप। सो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रेजेंट बिटवीन दिस एयर गैप, बिटवीन दी एयर गैप। Now comes the rotor. Now you can see these two rotors. This is which type? This is your slip rings. This is your slip ring rotor. So rotor of 2 types. So what happens in squirrel cage rotor? Okay, squirrel cage, it is cylindrical in shape. Okay, it is being constructed in such a way. Yes, there is a slots are being there on its outer periphery. It is a cylindrical structure with slots on its outer periphery. देखिए ये सिलेंडर है, अब ऊपर की तरफ है, जबकि स्टेटर में क्या होता था? इनर की तरफ। यहाँ पे क्या है? रोटर इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद स्लॉट्स ऑन इट्स आउटर पेरिफेरी, एंड इन दिस स्लॉट्स इज अकोमोडेटेड। इस स्लॉट्स में क्या रखा जाता है? बार्स। क्या रखा जाता है? Why it is not working? What is there? Copper bars or aluminium bars as per, because aluminiums are cheap. Aluminium सस्ते होते हैं, इसलिए हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सारी लाइन कौन सी होती है? चांदी के लगा दो तो तुम तो लूट मचा दो। सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर। और उसके बाद कॉपर भी है, लेकिन उससे पहले लगाई थी तो लोगों ने चोरी करना शुरू कर दिया, तो इसको खत्म कर दिया गया। इट हैज बीन now only aluminum conductors are being used. Okay, so either you go for aluminum or copper bars, not windings. बार मतलब समझ गए? कैडबरी की बार, डेयरी मिल्क की बार,
चौको बार खाई होगी कि नहीं खाई होगी, ठीक है, बार टाइप की, स्लैब टाइप की होती है, ठीक है, वो स्लैब टाइप की इसमें एकोमोडेट कर दी जाती है, स्लॉट्स में भर दी जाती है। इज इट क्लियर? अब हमारा सिलेंड्रिकल शेप, आउटर में स्लॉट्स, उसमें डाल दिए क्या हमने, आइदर एल्यूमिनियम और कॉपर बार्स, ठीक है, एंड दीज बार्स आर शॉर्ट सर्किटेड एट बोथ द एंड्स बाय 2 कॉपर एंड रिंग्स, ठीक है। ये सिलेंड्रिकल में यहां हमने क्या डाल दिए, स्लॉट बार्स डाल दिए और इधर जोड़ दिया, बाहर आएंगे कुछ, इधर जोड़ दिया, किससे, एंड रिंग से। किसकी बनी हुई है, कॉपर की, कॉपर एंड रिंग, किससे, कॉपर और एल्यूमिनियम एंड रिंग्स, ठीक है, शॉर्ट आर बोथ द एंड्स, दस द रोटर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग। तो रोटर कैसे बिहेव करेगा, जब आपने बार्स कंडक्टिंग बार्स है, उन बार्स को आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया 2 एंड रिंग से, तो अब ये कैसे बिहेव करेगी, रोटर शॉर्ट सर्किट वाइंडिंग। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एंड रोबस्ट कंस्ट्रक्शन एंड दैट इज व्हाई इट इज बीइंग वाइडली यूज्ड। बहुत सिंपल है, कोई ज्यादा दिमाग पे जोर लगाना पड़ा कि आपको समझने में जोर नहीं लगाना पड़ा, बनाने में जोर नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। तो भाई जैसे अगर मान लो वाइंडिंग होती तो वाइंडिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आगे आपके वाइंडिंग का एक कोर्स भी है कि फर्स्ट स्लॉट्स रवाना हुआ वो 7th में जाएगा, 7 से 14 में जाएगा, तो स्पेशल टाइप ऑफ स्किल इज रिक्वायर्ड, ठीक है। आपने पोल पिच कितना दिया, वाइंडिंग फैक्टर कितना है, ये सब ध्यान रख के आपको पूरी वाइंडिंग का डिजाइन। यहाँ पे क्या करना है, स्लॉट्स है, कॉपर बार्स लाए, ये फिट किए, 2 एंड रिंग्स को लगा दिया साइड में, ये तैयार हुआ। सो वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन, रोबस्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कई बार इसको रिपेयर करना है तो जो किसान होते हैं या खेती जो काम कर रहे हैं वो ऐसे ही निकाल के यूं धक्का देके ना दुकान तक पहुंचा देते हैं और उसके कुछ नहीं होता। तो लेस मेंटेनेंस, ऐसा कुछ स्लिपरिंग विस्परिंग भी नहीं है, तो कोई मेंटेनेंस की जरूरत भी नहीं। अरे समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये सब एडवांटेज, व्हाई वी गो फॉर इंडक्शन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इंडक्शन मोटर, तो ये आप सब देंगे। इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड, इट इज इकोनॉमिकल, यू गॉट माय पॉइंट, ठीक है। तो ये सारे चीजें फैक्टर्स इसको वाइडली पॉपुलर बनाते हैं अमंग मासेस फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन, ठीक है। आपके घर में जो मोटर है वो कौन सी मोटर है, पानी ऊपर चढ़ाते हो हैं ओवर टैंक में, ठीक है, किससे चढ़ाते हो, बाल्टी भर भर के लेकर जाते हो सीढ़ियों से हैं, या सुबह सुबह जिम की एक्सरसाइज, उन्हें एक रस्सी डाल रखी है, पीछे बाल्टी लटका दो फिर रस्सी से ऊपर चढ़ते हो, ऐसा तो नहीं है। तो कैसे करते हो हैं, मोटर के थ्रू। कौन सी मोटर है वो, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वही जो अपनी है ना ये पंखे वाली नहीं होती है उस टाइप की। इज इट क्लियर? तो वो उस मोटर का एक पिक्यूलर बिहेवियर है, वो भी हम पढ़ेंगे जब हम सिंगल फेज मोटर को। तो आप डोंट कंफ्यूज मत होना, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर की। तो आप कंफ्यूज मत होना कि आपको एग्जाम में पूछे एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंगल फेज मोटर, तो आप लिख दो इज ए स्टेटर whose a distributed winding of 3 phase distributed winding, a rotor squirrel cage, तो लिखकर भी आपको 0 मार्क। आई एम टॉकिंग अबाउट विच मशीन, ठीक है। अब आते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, जिसको हम वाउंड रोटर टाइप मोटर भी कहते हैं। इज इट क्लियर? स्लिप रिंग से नाम इंडिकेट है कि इसमें क्या यूज होगा, क्या होगा, स्लिप रिंग्स। क्या यूज होगा, स्लिप रिंग्स। तो स्लिप रिंग्स एक फिर एक डेलिकेट आइटम, स्लिप रिंग एक अपने आप में क्या हो गया, एक डेलिकेट आइटम। ये आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो है ना 3, ये क्या है आपकी स्लिप रिंग्स। अब स्लिप रिंग्स जहां यूज होगी, बेसिकली लगाते क्यों है स्लिप रिंग का, स्लिप रिंग को इसलिए लगाते हैं टू हैव अ कंट्रोल ओवर स्पीड, टू कंट्रोल ओवर। हम इससे स्लिप रिंग की, अब जैसे रोटर घूम रहा है इसमें, किसमें, स्क्विरल केज मोटर में रोटर घूम रहा है। अब मैं इसमें कहूं कि आपको इसकी स्पीड कंट्रोल करनी है इसमें कुछ रेजिस्टेंस इंसर्ट करके, तो आप कहोगे सर वैसे ही घूम रहा है, रजिस्टर लगाओगे उसको भी घुमाएगा, घुमा के थोड़े दिन बाद अपने मुंह पर ही मार देगा कि ये लो, ठीक है। तो अगर किसी रोटेटिंग डिवाइस में अगर हमें कोई चीज इंसर्ट करनी है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटर कुछ भी, तो हम इसकी सहायता से करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग्स, विद द हेल्प ऑफ स्लिप रिंग। तो इसमें हमने एक एक्स्ट्रा क्या लगा दी, स्लिप रिंग्स, और हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाकर उसको चेंज करके हम उसकी स्पीड को कंट्रोल
कर सकते हैं। लेकिन स्लिप रिंग कोई इतना आसान खेल नहीं है भाई, इतना वो भी घूमेगी, रोटर पे लगी हुई है तो वो रोटर घूमेगा तो वो उसका भी वियर एंड टियर होगा, तो बार बार आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। ठीक है, जो चीज ज्यादा चलेगी, ठीक है, उसको मेंटेनेंस भी चाहिए। अब आपको मैं कहूँगा रोजाना है ना 10 किलोमीटर पैदल चलो, तब मैं क्लास में अलाउ करूंगा। ठीक है, चल तो जाओगे लेकिन वापस एनर्जी भी तो चाहिए। ठीक है, नाश्ता भी चाहिए, अच्छा खासा न्यूट्रिशियस लंच भी चाहिए। इज इट क्लियर? तो फिर तुम आ पाओगे, बैठ पाओगे। इज इट क्लियर? तो मेंटेनेंस भी चाहिए आपको, मेंटेनेंस मीन्स खर्चा चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इट हैज द सेम फॉर्म एज द स्टेटर वाइंडिंग। ठीक है, जो स्टेटर होता है ना हमारा इंडक्शन मोटर, उसी के तरह का होता है। ठीक है, द टर्मिनल्स ऑफ द रोटर वायर कनेक्टेड टू 3 स्लिप रिंग्स। जो रोटर के 3 टर्मिनल होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं? 3 स्लिप रिंग्स से। ठीक है, एंड यूजिंग स्टेशनरी ब्रशेज इट कैन बी कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सर्किट। स्लिप रिंग्स के ऊपर क्या होता है? ब्रशेज लगे हुए होते हैं, उन ब्रशेज को हम किसी एक्सटर्नल सर्किट से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया। अब आप रियोस्टेट को वेरी करते रहो और स्पीड को वेरी करते रहो, मोटर भली घूमती रहेगी। तो आपके आसान हो गया कि नहीं हो गया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लेकिन ब्रशेज, एक्सटर्नल सर्किट, आपके स्लिप रिंग्स, इन तीनों का खर्चा कौन वहन करेगा? हम ही करेंगे। तो इट इज ए कॉस्टली मैटर। समझ में आया कि नहीं आया? So this is the schematic diagram of a 3-phase machine. This is the outer frame which is called stator. Okay, and in this stator, this is the one such core is being shown, and this circle are pointing out what? Windings. अरे stator में तो winding ही होती है। These are the 3-phase windings. This is a distributed winding. इसलिए हर slot में एक कंडक्टर शो किया गया। ये एक फेज A डैश, B डैश, C डैश। इज इट क्लियर? एक सिरा इधर है और एक सिरा इधर है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग हो गई कि नहीं हो गई? ठीक है, सभी एक ही स्लॉट में होते तो क्या कहलाते? कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग। क्या कहलाते? तो स्टेटर क्लियर हो गया। और ये हमारे क्या है बीच में सर्कल, जो सिलेंड्रिकल को क्रॉस सेक्शन में काटोगे, मैकेनिकल में नहीं पढ़ते आप, मशीन ड्राइंग में फ्रंट व्यू कैसे होगा, टॉप व्यू कैसे होगा, तो ये क्या है इसका फ्रंट व्यू। तो आपको एक स्टैंपिंग, एक कोर दिखेगी, इस कोर के अंदर क्या भरा है? ये बार्स जो गोल दिखाए गए, ये क्या दिखाए गए? दीज आर द बार्स एंड दे आर बीइंग शॉर्ट सर्किटेड विद द हेल्प ऑफ एंटेन्स। दिस इज क्लियर? ठीक है, ये इसका नीचे का बेस जिसपे मोटर रखी जाती है। आपने मशीन लैब में गए अभी जाए तो आपको इंडक्शन मोटर दिख जाएगी। ठीक है, अब जनरली क्या होता है कि जब हम लैब में जाते हैं तो ये हमारी मशीन होती है और सामने एक बोर्ड होता है। ठीक है, उस बोर्ड पे कुछ पॉइंट बने हुए होते हैं R, Y, B और आपको कनेक्शन कहते हैं। तो मैंने कई बार देखा है कि स्टूडेंट को अगर ना बतावें, वो अपनी दिमाग का यूज करें, तो वो बोर्ड को ही कहता है सर ये इंडक्शन मोटर। बोर्ड को ही क्या कहता है? जैसे मोटर यहाँ पड़ी हुई है, उधर बोर्ड पड़ा हुआ है, अब वो कनेक्शन कर रहा है R, Y, B। ठीक है, और फिर कहता है, उससे पूछते हैं वाइवा में कि भाई इंडक्शन मोटर कहाँ है? कि सर इसके पीछे होगी कहीं, जबकि इंडक्शन मोटर कहाँ पे है? नीचे साइड में आपके इंडक्शन मोटर होगी। इज इट क्लियर? सो डोंट गेट कंफ्यूज लाइक दिस। इज इट क्लियर? थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। नाउ दिस स्टेटर हैज विच टाइप ऑफ वाइंडिंग? 3 phase। तो 3 phase there are 2 possible connection, either star or delta, either star or delta। आगे हम पढ़ेंगे कि हम क्या करते हैं कि इसको एक प्रकार का स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार्टर का क्यों यूज करते हैं? पहली बात तो स्टार्टर का नाम सुना है? डीसी मशीन में भी 3 पॉइंट स्टार्टर और 4 पॉइंट स्टार्टर का क्या प्रयोग था? हैं? स्पीड का कंसेप्ट नहीं है, स्पीड तो जितनी होगी वो होगी। द करंट इज 5 to 7 times द फुल लोड करंट, रेटेड करंट। इज इट क्लियर? तो अब उसको अगर मान लो स्टार्ट किया आपने, जैसे ही जाएगा मोटर जल जाएगी। आप कहोगे चलो रिवाइंडिंग करते हैं, फिर स्टार्ट किया फिर जल जाएगी, तो आप कहोगे सर चली तो है नहीं और बार बार जल रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके
करंट को लिमिट करने इनिशियल, और ये बात कब होती है, केवल इनिशियल टाइम पीरियड में, तो उसको बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, स्टार्टर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आपके स्टार्टर आएगा जिसका नाम होगा स्टार डेल्टा स्टार्टर। क्या नाम है, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है। तो उस स्टार डेल्टा में क्या करेंगे कि इनिशियली हम उसको किस फॉर्म में चलाएंगे, स्टार में, ताकि वोल्टेज, फेज वोल्टेज कम हो जाए, फेज वोल्टेज कम हो जाए। तो वोल्टेज कम होते ही करंट भी कम हो जाएगा, तो हमारी मोटर स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही पिकअप स्पीड कर दे हम उसको वापस कन्वर्ट कर देंगे किसमें, डेल्टा में। तो उसको नाम है स्टार डेल्टा स्टार्टर। इज इट क्लियर? तो हम ये कहेंगे कि मशीन किस फॉर्म में है, मशीन वाइंडिंग्स है, शुरू में स्टार में रख दिया और बाद में डेल्टा में रख दिया। इज इट क्लियर? और क्या कनेक्शन होते हैं, दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पिक्चर। क्लियर है कि नहीं है, कि कुछ नहीं दिख रहा है? दिस इज स्टार एंड दिस इज योर डेल्टा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेज वोल्टेज ऑफ ए स्टार कनेक्टेड नेटवर्क? VL is equal to, in a balanced phase system, √3 times V phase by IL is equal to I phase. In which case? Star connected network. This is clear or not? Huh? And what happens in delta? What is there in delta? Okay, what happens? VL is equal to V phase. However, IL is equal to √3 I. This is clear? अरे this is clear or not? चलो, तो हमारा यहां तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। Now, this concept I have already explained you. Okay. So, when a three-phase voltage is supplied to the stator winding, what will happen first of all? जब मैंने एक थ्री फेज सप्लाई दिया, वोल्टेज दिया मोटर को, ठीक है, तो उसकी स्टेटर वाइंडिंग में क्या होगा? अरे वो बात की बात है, पहला है मैग्नेटिक फ्लक्स भी दूसरी बात है, पहली बात क्या है, थ्री फेज करंट प्रोड्यूस होगा। अरे मैं कोई ऐसी आपको बातें थोड़ी पूछ रहा हूँ रॉकेट साइंस वाली जो आप अरे यार क्या होगा, पहले थ्री फेज करंट होगा कि नहीं होगा, आई एम साइन ओमेगा टी, और ये थ्री फेज होगा तो आई एम दूसरा क्या होगा, आई बी, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, और तीसरा क्या होगा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री या प्लस 120 डिग्री। ये मैंने कल भी बताया था आपको, अरे बताया था कि नहीं बताया था? अब करंट प्रोड्यूस हुआ तो करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, अपना एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। और किसी इंस्टेंट पे टोटल एमएमएफ क्या होगा, ए फेज का फ्लक्स, बी फेज का फ्लक्स और सी फेज का फ्लक्स का वेक्टर सम, क्या होगा, वेक्टर सम। अरे ये क्लियर है कि नहीं है? So, in a similar instant, I have already given you this concept in the last class. What will happen at 0 degree? We take omega t is equal to 0, then omega t is equal to pi by 6, then pi by 3, then pi by 2. What we have found? That a rotating magnetic field is, the same concept has been explained graphically here. For example, this was this, then this was this, in this way it will rotate. Okay, so ultimately the same word what we got, that the resultant flux will be, it is not being given here, the resultant flux will be of a constant magnitude, that is 3 by 2 phi m, and it will rotate at a speed called synchronous speed 120 f upon p. Is this clear or not? And how it has been derived? ठीक है, the resultant MMF make one revolution per cycle of the current in a two-pole machine. In a two-pole machine, what happens? One revolution per cycle of the current in a two-pole machine. So in a p-pole machine, it makes 2 by p revolution for a cycle. Clear? And for a frequency of f cycle, how do you define frequency? Frequency को कैसे परिभाषित करेंगे? आवर्ती को number of cycles per second. तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है? एक तरह से साइकिल्स का रिप्रेजेंटेशन. एक सेकंड, जैसे मैं कहता हूं 50 हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ? 50 साइकिल्स पर सेकंड. आपकी आंखें देख नहीं सकती, देख सकती है क्या? साइन वेव
मेरे तो हाथ भी 1 सेकंड में एक बार ही चला, वो ऐसी 50 साइकिलें बना देती है 1 सेकंड में, ठीक है। 100 हर्ट्ज मीन्स जैसे हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स जो मीडिया है, रेडियो स्टेशन, टीवी, ये किस में चलती है? मेगाहर्ट्ज। किस में चलती है? और आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जब बाजार में खरीदने जाते हो तो प्रोसेसर की स्पीड पूछते हो कि नहीं पूछते हो? सर कहाँ जरूरत है, हम जान पहचान के अंकल के पास जाते हैं, ठीक है, वो जो कॉन्फ़िगरेशन पकड़ा देता हम लेके आ जाते हैं, क्यों नहीं, ठीक है। हम मेन देखते हैं कि पैसा, हमें कोई मतलब नहीं है कि टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो हम कभी नहीं देखते कि इसकी है ना प्रोसेसर की स्पीड फ्रीक्वेंसी क्या है। जैसे 2.4 गीगाहर्ट्ज, गीगा मतलब समझ लीजिए गीगा कितना होता है? 10 to the power 10 to the power 9 होता है कि नहीं होता है? नैनो कितना होता है? हैं? -9। तो ये आपको रिवर्स में भी याद होने चाहिए। 10 to the power -3 क्या होता है? मिली। और 10 to the power 3 किलो। 10 to the power -6 माइक्रो। और 10 to the power +6 क्या है? एग्जैक्ट मेगा। You don't do this very simple। मतलब जितने हम हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं उतना हमारी बुद्धि लोअर होती जा रही है, हम भूलते जा रहे हैं पुराने कंसेप्ट। ये तो टिप्स पे होने चाहिए कंसेप्ट, एंड इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम साइंस एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, दिस शुड बी ऑन द टिप्स, ठीक है। फिर आता है हमारा क्या आता है? हैं? क्यों बीको कैसा आएगा? फिर गीगा आएगा। जीबी नहीं होती है, पहले एमबी में होता है, पहले केबी में होता है। वर्ड फाइल किस में होती है? केबी में। और कुछ हायर रिजोल्यूशन वाली हुई, जैसे मोबाइल पे फोटो होती, किस में होती है? एमबी में। और मेरा ये जो कल बना वीडियो, ये किस में बना? जीबी में, ठीक है। और जीबी के बाद टीबी, टेराबाइट। क्या कहते हैं? टेराबाइट। कितना होता है टेराबाइट? हैं? अरे यू बोलो ना, 10 to the power what? 10 to the power 3 GB। कंसेप्ट आर नॉट क्लियर, गेट इट क्लियर, इज इट क्लियर? मार्केट में जो चल रहा है, हम क्या मार्केट से सीखते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि हम सीख कर मार्केट को सही बताएं। जैसे मैंने नहीं कहा था कि आपके कंडक्टर हैं, कंडक्टर, आप वायर खरीदने गए बाजार में, क्या कहोगे? अभी तो कुछ बोलोगे नहीं, मालूम ही नहीं, भैया एक तार दे देना, पंखे के लगाना है, ये स्टाइल रहेगी। अरे यू आर ए फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्निकल, आप उसको कहिए सर मुझे 1.5 स्क्वायर mm का वायर दीजिए, वो स्क्वायर सुनते ही उसका चक्कर आ जाएगा। समझदार होगा तो वो समझेगा यार ये टेक्निकल आदमी है। अगर आपने कहा था एक 1.5 mm का देना, तो ये हमने मॉडिफाइड कर दिया। जो कम पढ़े लिखे हैं उन लोगों ने क्या कर दिया कि कंडक्टर की क्या बोल दिया उन्होंने? स्क्वायर हटा दिया, कि कौन बोले स्क्वायर, और mm कर दिया। जबकि हम एज ए साइंस स्टूडेंट जानते हैं कि mm इज द यूनिट ऑफ लेंथ एंड वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन। इज इट क्लियर? गीजर का वायर लेने जाएंगे तो कितना कहेंगे? 2.5 स्क्वायर mm। और एसी का लेकर जाएंगे तो क्या कहेंगे? सर अभी तक एसी लगाया नहीं है, लगाएंगे तब सोचेंगे। हैं? हैं? अरे 4 स्क्वायर mm। इज इट क्लियर? तो ये चीजें आपके ना टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से घर पे लाइन ले जाएंगे मेन तो कितना होगा? 6 स्क्वायर mm। और सर्विस लाइन से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक आएगा तो अगर 5 किलोवाट तक का लोड है तो 10 स्क्वायर mm। कितना? तो ये चीजें आपके टिप्स पे होनी चाहिए। और मैं कोई मेरे मन मर्जी से नहीं कि मैंने कहा जो फतेह, दिस इज अकॉर्डिंग टू द current capacity which it has to handle, and as the current capacity increases, cross section area of the conductor increases। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ये चीजें आपको होनी चाहिए, वरना फिर आप में और वो जो एक टेक्नीशियन है बिना पढ़ा हुआ, उसमें क्या फर्क है? क्लियर? एज ए इंजीनियरिंग, मैंने पहले ही कहा इंजीनियरिंग में तीनों बैकग्राउंड शामिल होने चाहिए, ITI,
डिप्लोमा एंड योर इंजीनियर। इज इट क्लियर? तब आप है ना अपना आपको एक स्मार्ट इंजीनियर कह सकते हो, वरना तो 10 लाख इंजीनियरिंग डिग्री इंजीनियर्स निकलते हैं हर साल। भीड़ में खो जाओगे, भीड़ में खो जाओगे। इसलिए भीड़ में से अलग दिखना है तो आपको कुछ अलग सीखना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप अपने आप में यूनिक। नाउ यस, दिस इज अ यूनिक पर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। सो व्हाट इज क्लियर? फॉर अ फ्रीक्वेंसी f साइकिल पर सेकेंड, what will be the speed? N is equal to 2f upon p into 60. 60 has been there to convert into revolution per minute. So from there it is clear that we have a 120 f upon p is the formula for the speed of the rotating magnetic field. This is clear? अरे clear है कि नहीं है? Okay. और इस स्पीड को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सिंक्रोनस स्पीड। I will skip this part. Now suppose I say I have applied 3-phase current through an stator winding and a rotating magnetic field is produced which is rotating in clockwise direction, Suppose I want it should rotate in anti-clockwise direction. What should I do? That I will reverse any 2 phases. R B है 3 phases, ठीक है। Y को R में लगा दिया और R को Y में लगा दिया, तो मेरा अब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड किधर रोटेट करने लग जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। सो बाय रिवर्सिंग द टर्मिनल्स ऑफ एनी 2 phases you can change the direction. 2 ही डायरेक्शन पॉसिबल है, कौन सी? क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। आपको लगता है नहीं मेरे को तो क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज, तो फेज 2 फेज के टर्मिनल रिवर्स कर दो। इज इट क्लियर? दिस इज दिस पॉइंट यू हैव टू आंसर। सो फार अनदर जनरलाइज पॉइंट आई वांट टू डिक्टेट टू यू दैट हमने कहा कि ये हमारा सारा सिस्टम क्या था? क्या था? 3 फेज। 3 फेज का क्या मतलब हुआ? 3 फेज है। इज इट? सो बट दिस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस फॉर n phase balance current also, where windings are placed at angle of 360 degree by n. मान लो आपका 5 फेज सप्लाई है। क्या है? 5 फेज सप्लाई है। और अगर आपने वाइंडिंग को, ठीक है, 360 डिग्री बाय 5 कितना हुआ? कैलकुलेट करो, गिव मी आंसर। आई हैव अ 5 फेज सप्लाई, ओके, एंड 360 degree by 5 is how much? 72. And I have placed my windings in the space at angle of 70 degree to each other. Then again a rotating magnetic field will be produced. I have a 6 phase supply and the windings are placed at 60 degree to each other. Then again a rotating magnetic field will be produced. So for an n phase system, if the windings are placed at an angle of 360 degree by n, then a rotating magnetic field will be produced. ये 3 phase में ही नहीं है, थोड़ा सा अपना दिमाग विकसित करो, ब्रॉड करो। 3 फेज में होगा। कोई पूछेगा अगर मेरा 5 फेज है और वो 70 डिग्री एंगल पे है तो क्या मैं रोटेटिंग, क्या मैं 5 फेज सप्लाई से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता हूँ? नहीं, नो सर। क्यों? क्योंकि दवे सर ने बताया था कि सिर्फ 3 फेज में ही होगा अगर 3 वाइंडिंग 120 डिग्री पे होगी। लेकिन ये बात तुम भूल जाओगे। मैं ये भी कह रहा हूं कि अगर एक n फेज सप्लाई है और वाइंडिंग्स आर इन स्पेस डिस्प्लेस्ड बाय एंगल ऑफ 360 डिग्री बाय n, देन अगेन अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोड्यूस्ड। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ये बात, ये जनरलाइज बातें हैं। तो हमें चीजें क्या है कि जनरल में भी रखना है कि एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है यदि n फेज सप्लाई हो और वाइंडिंग्स 360 डिग्री बाय n में स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो या प्लेस्ड हो। अरे समझ में आया कि नहीं आया?
अच्छा, अभी तक हम इंडक्शन इफेक्ट पढ़े, फैराडेज लॉ पढ़ा है आपने। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है फैराडेज का, बताओ। दैट व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड अ मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस ईएमएफ इज, डू यू एग्री? और हमारी जो अभी तक मशीन थी उसमें क्या था? फील्ड स्टेशनरी था। क्या था? डीसी मशीन में कौन था स्टेशनरी? फील्ड। और घूम कौन रहे थे? कंडक्टर। कॉइल या कंडक्टर घूम रही थी, और फिर उसके कारण क्या प्रोड्यूस हुआ कंडक्टर में? इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ। अरे हुआ क्या नहीं हुआ? यहां इंडक्शन मोटर में इसका जस्ट रिवर्स है। क्या है? कैसे रिवर्स है? दैट नाउ मैग्नेटिक फील्ड इज रोटेटिंग। Okay, it means a magnetic coil is rotating. आप उसको analogous ले सकते हैं, that it is analogous to moving a field which is stationary with respect to space. कहाँ घूम कहाँ रहा है? स्पेस में। तो स्पेस के रेस्पेक्ट में क्या हुआ? स्टेशनरी। बट अगर आप स्टेटर में बैठे होगे तो आपको क्या दिखाई देगा? घूम रहा है। स्टेटर रिलेटिव है ना। दो ट्रेनें एक ही स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर से एक ही डायरेक्शन में चल रही है, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी? श्योर? ये तो मैथमेटिक्स में रटते हो आप, ठीक है। पर रटना क्या, वो 40 किलोमीटर है, वो भी 40 किलोमीटर है, जिसके रेस्पेक्ट में तो 40 माइनस 40 कितना हुआ? स्पेस के रेस्पेक्ट में ये क्या है? फील्ड। फील्ड की स्पीड क्या है? 0, स्टेशनरी है। लेकिन स्टेटर में बैठे होगे तो क्या है? इट इज रोटेटिंग एट ए स्पीड ऑफ ns। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आगे बढ़े। ये एक आपको ग्राफिकल पिक्चर से भी दिखाया गया है कि रोटेट कर रहा है। दिस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, ओके। Now comes to the point, as I have already told you, that induction machine। नाम क्या है? इंडक्शन में इंडक्शन इफेक्ट भी आपने सुना है कि बिना छुए अपनी एनर्जी को दूसरे में ट्रांसफर कर देना, मतलब एक प्रकार का हिप्नोटिज्म है। क्या है? हिप्नोटिज्म, ठीक है। उसको लेकिन हिप्नोटिज्म नाम नहीं दिया, क्या नाम दिया? इंडक्शन। जैसे है ना, दो दोस्त आपस में हॉस्टल में रूममेट है, एक शरीफ है और एक पहले से ही सब कुछ उल्टे सीधे धंधे सीख के आया हुआ है, ठीक है। तो वो जो शरीफ है, ठीक है, वो चाहे कितना भी शरीफ रहे, लेकिन धीरे 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 वो उसके पद चिन्हों पर, जो सब कुछ उल्टे सीधे धंधे करके आया है, उसके पद चिन्हों पर चलना शुरू हो जाएगा। इज इट क्लियर? उसने उसको कुछ नहीं कहा, केवल उसको बातें बताता, अरे तुझे नहीं मालूम स्मार्टनेस किसे कहते हैं, यू नो स्मार्टनेस, तुझे आगे कॉर्पोरेट फैमिली में रहना है, ये करना है, वो करना है। वो बेचारा भोला भाला, अच्छा ऐसे होता है, अरे जिंदगी खराब हो जाएगी अगर ये नहीं तो। ऐसे फंडे वाले मिलते हैं लोग, ठीक है। तो धीरे धीरे उसमें इंडक्शन ऑफ वो भी वैसे ही बन जाएगा, और उससे ज्यादा। तो वो तो चालाक है, तो सिखाने वाला है। और शॉर्ट चीजें, डिस्ट्रक्टिव चीजें बहुत जल्दी कैप्चर होती है, नैनो सेकंड्स में। मैं आपको कहूं कि ये गिरानी है ये बिल्डिंग, आपको उससे छोटा सा नाश्ता करवा दो, सब एक एक आएंगे, कोई जूते मारेगा, कोई ये लो फोड़ेगा, ये फोड़ा, विद आधे घंटे में लो सर। अब मैं कहूं इसको बनाओ, रहने दो सर, मैं दूसरी कॉलेज में एडमिशन ले लेता हूं। क्या इस शॉर्ट स्टोरी से क्या समझ में आया कि कंस्ट्रक्टिव थिंग्स टेक्स टाइम, longer time, while destructive things can be done in a seconds, nano seconds, ठीक है। गाली सीखना बहुत आसान, 3 गालियां बताऊंगा, तुम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 100 गालियां बना दोगे। हाफ कट कैन, सेमी कट कट कैन, 3/4 कट कैन, इसको जोड़ के। और मैं तुम्हें टेक्निकल वर्ड सिखाने को कहूंगा, ठीक है सर, थोड़ा टाइम लगेगा सर, पढ़ेंगे सर, पूरे 6 महीने पढ़ेंगे तब जाके, या और एग्जाम के समय तो और ज्यादा याद होगा। तो सर आपको
बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है. सो नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट दैट द फ्लक्स इज रोटेटिंग in the air gap. Okay, now this flux will cut what the flux के हाथ में कौन है, पास में कौन है, रोटर, और रोटर के ऊपर क्या है, आउटर पेरिफेरी में क्या है, कंडक्टर्स, बार्स. ठीक है, तो ये फ्लक्स किसको कट करेगा, बार्स को यानी कंडक्टर्स को. और क्या करेगा, कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड घूम रहा है और कंडक्टर स्टेशनरी, अभी रोटर घुमा नहीं है, कंडक्टर स्टेशनरी है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहेगा, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस, इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस. और रोटर हमारा खुदा ना खास्ता क्या है, शॉर्ट सर्किट है कि नहीं है? किससे किया था हमने शॉर्ट सर्किट, थ्रू टू कॉपर एंड रिंग्स, तो हमने उसको शॉर्ट सर्किट कर दिया. ठीक है, तो उसने इंड्यूस ईएमएफ तो प्रोड्यूस किया, साथ साथ हाथों हाथ क्या प्रोड्यूस कर दिया. अगर ओपन होता तो सिर्फ इंड्यूस ईएमएफ होता, लेकिन शॉर्ट सर्किट है तो क्या प्रोड्यूस हो गया, करंट. अब करंट प्रोड्यूस हुआ तो करंट से कारण क्या प्रोड्यूस हुआ, फ्लक्स. ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ पहले, फिर करंट हुआ, और करंट ने क्या प्रोड्यूस किया, फ्लक्स. तो इधर स्टेटर फ्लक्स तो था ही रोटेटिंग, और इधर किस रोटर ने भी अपना एक फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया. अब ये आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्शन. क्या करेंगे, आ जा, अब तो नूरा कुश्ती हो जाए. और इस नूरा कुश्ती में क्या होगा, क्या होगा, टॉर्क क्या जनरेट होगा. तो मैंने पहले ही बताया था आपको डीसी मशीन में कि टॉर्क इज जनरेटेड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ स्टेटर एंड रोटर फ्लक्सेस. एक खिंचाव प्रोड्यूस होता है, वो खिंचाव किस पे लगेगा, बेचारा कौन बैठा हुआ बीच में, रोटर, और वो घूमने लग जाएगा. इन दिस वे द रोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग. अब रोटर स्टार्ट रोटेट कर गया, किधर घूमे, मान लो फ्लक्स एंटी क्लॉक सॉरी क्लॉकवाइज में घूम रहा है. फ्लक्स किधर घूम रहा है, क्लॉकवाइज में. फ्लक्स इज मूविंग लाइक दिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो फ्लक्स. तो रोटर किस डायरेक्शन में घूमे तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे सर घूम लो, जिधर घूमना है घूम लो, बस चल जाए गाड़ी है. तो फिर यहां पे हमारा काम आएगा लेंजेस लॉ. कौन आएगा, पढ़ा है लेंजेस लॉ, क्या पढ़ा, दैट इज अपोजेस द कॉज, इज अपोजेस द कॉज. अच्छा, मुझे पढ़ा रहा है मशीन, याद रखना, ऐसी मशीन बनाऊंगा जिसमें तेरा ब्रेन क्रश कर दूंगा एकदम. ये तुम्हारी भावना बता रहा हूं मेरे प्रति. अपोजिट द कॉज, जिसके कारण तुम पढ़ लिखे हो, उसी का हम विरोध करेंगे. ये मनुष्य का स्वभाव है. सारे हमारे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय झगड़े इसी बात के हैं कि जिसने पैदा किया हम उसी का ही विरोध करेंगे कि क्यों पैदा किया हमें, जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए. ठीक है, आप संसार में आए हो तो आपके खुद के कारण आए हो, ये ध्यान रखना. ये हमारा भारतीय ज्ञान है कि संसार में आप जो आए हो वो अपने खुद के कर्मों के कारण आए हो. उसमें माता पिता जस्ट एक साधन बने हैं आपको कि नहीं, तेरे कर्म अधूरे रह गए थे और अब उसको पूरा करने के लिए आपको इस संसार में वापस प्रवेश करवाया. इसलिए हमारे यहाँ पर मातृ ऋण और पितृ ऋण का कंसेप्ट है. जबकि आपको क्या लगेगा, मुझे पैदा ही क्यों किया. अरे हमारे जो जस्ट एक छोटी सी बात, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि आत्मा तड़पती है वापस जन्मने के लिए, कि बस मुझे भेज दो. तो ईश्वर इंतजार करता है कि तेरे कर्म कैसे हैं, उस कर्म के अकॉर्डिंग तेरे माता पिता कौन है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आपका इस जन्म में, इस संसार में वापस प्रादुर्भाव होता है. इसलिए आप इस संसार में हो सिर्फ अपने कर्मों के कारण ही, किसी दूसरों के कारण नहीं. ये ध्यान रखना. और हमें एक माध्यम दिया माता पिता के थ्रू इस संसार में आने का. इसलिए हमारे यहाँ पे मातृ ऋण और पितृ ऋण के दो बड़े कंसेप्ट. समझ में आया कि नहीं आया? मैं इस चीज के लिए नहीं बना हूं, बस थोड़ी बात आई तो बीच में आपको बता दे. लेकिन लैंग्वेज तो क्या कहता है, अपोजेस द वेरी कॉज. कॉज कौन था, कॉज कौन था, फ्लक्स. ठीक है,
रोटेटिंग फ्लक्स। कौन था? रोटेटिंग। अब रोटेटिंग फ्लक्स कहेगा, अच्छा तूने, वो रोटर कहेगा अच्छा तू मुझे मजबूर कर रहा है, चल मैं तेरे को ही कम करूंगा, मैं तेरी स्पीड को ही कम करूंगा। इज इट क्लियर? तो स्पीड को कम करने के लिए वो क्या करेगा? रिलेटिव स्पीड को कम करने के लिए क्या करेगा? विपरीत डायरेक्शन में जाए कि सेम डायरेक्शन में? क्या ऑपोजिट? अभी मैंने एग्जांपल आपको बताया था कि दो ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनकी रिलेटिव स्पीड एक मान लो 50 से, एक मान लो 40 से है, ठीक है? तो रिलेटिव स्पीड 40 के रेस्पेक्ट में 50 की कितनी होगी? 50 माइनस 40 इक्वल 10 किलोमीटर। तो अगर कम करनी है तो उसी दिशा में दौड़ना पड़ेगा, उसी दिशा में चलना पड़ेगा। तो किसने पैदा किया? रोटर को घूमने के लिए किसने मजबूर किया? रोटेटिंग मैग्नेट। फ्लक्स मत को क्या कहो? रोटेटिंग मैग्नेट। और रोटेटिंग फ्लक्स का मैंने क्या डायरेक्शन बताया आपको? लेटर एज्यूम इट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो रोटर भी किधर घूमने लगेगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ले मैं तेरी स्पीड कम करता हूं, मैं तेरी स्पीड कम करता हूं। तेरी ns है तो ले मैं भी आने की कोशिश करता हूं, क्या? ns। और जिस दिन ns हो जाएगा, ns माइनस n, रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है? रोटर और जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में, इनमें एक चोर सिपाही की दौड़ चलती रहती है, चोर आगे और सिपाही पीछे। तो चोर की यहां संज्ञा किसको है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को। और सिपाही कौन है? रोटर। कभी नहीं पकड़ पाता है क्या? अब जैसा भी इफेक्ट है या नहीं आई डोंट नो, मगर ये एक द्वंद्व चलता रहता है। इसलिए रोटर की स्पीड एक मोटर में इज ऑलवेज लेस देन द सिंक्रोनस स्पीड। अगर मान लो उसने स्पीड एक्वायर कर ली, किसने? रोटर ने। अगर रोटर ने ns स्पीड एक्वायर कर ली तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? कितनी होगी? 0 हो जाएगी। तो अब रिलेटिव स्पीड 0 होगी, उसका बदला पूरा हो गया, ठीक है? रिलेटिव स्पीड कुछ नहीं, नो इंड्यूस ईएमएफ, नो करंट, एंड thus the motor will become stand still। और आपको कुछ नहीं मिलेगा, बस शांति से बैठ जाओ। Is it clear? लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। रोटर स्पीड इन केस ऑफ इंडक्शन मोटर इज ऑलवेज लेस देन इट मे बी नियर अबाउट। मान लो आपका 4 पोल मशीन है, तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी होनी चाहिए? अरे होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? फ्रॉम इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू 50 Hz frequency is there, then synchronous speed should be, you will surprise to know that the rotor speed, this is synchronous speed, okay, the rotor speed will be like this. Full load rotor speed 1400, no load speed 1450 rpm. This difference is there. How much the difference is there? 50 rpm. Is it clear? This 50 rpm is being termed as, क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? स्लिप। आपने स्लिप वर्ड सुना होगा? क्या? फिसल गया, स्लिप हो गया। तो यहां पे वो फिसल रहा है। कौन फिसल रहा है? रोटर। किसको कैच करना चाहता है? सिंक्रोनस, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की सिंक्रोनस स्पीड को। लेकिन हर बार वो मात खाएगा, हर बार उसकी स्पीड किससे? स्लिप्ड होगी। किससे? सिंक्रोनस स्पीड से। और वो डिफरेंस कितना है, उसी डिफरेंस को हमने जामा पहनाया एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड इजाद करके, जिसका नाम है स्लिप। क्या नाम है? स्लिप। और टेक्निकली हम डिफाइन करेंगे स्लिप को एस, स्मॉल एस से। एंड हाउ इट विल बी? ns minus n over ns. The difference between the ratio of the difference between synchronous speed and the rotor speed with respect to synchronous speed is called slip. This is a very important formula, okay, basic formula, that the rotor never catches the synchronous speed, and the difference between synchronous speed and the rotor speed with respect to synchronous speed is termed as a slip.
ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल 1500 आरपीएम इज द सिंक्रोनस स्पीड, व्हाट इज द रोटर स्पीड, नो लोड स्पीड 1050 आरपीएम. सो इफ आई विल सब्ट्रैक्ट इट, हाउ मच इट कम्स आउट टू बी? 50 divided by 1500, how much it comes out to be? Find out. In fraction, in decimal, 0.03. What is the unit? What is the unit? It is a unitless. Slip is a unitless in the sense, because RPM over RPM ratio is there, therefore unitless. And if you want to convert, sometime in percentage also given, S percentage will be equal to 0.03 multiplied by 100, so it will be 3%. So you can be given in as a fraction form 0.3, or you can be given 3% slip. Is it clear? Very clear. If 3%, how much it is? 3 by 100, that is 0.03. 5%, 5 by 100, 0.05. Is it clear or not? ये clear हुआ कि नहीं हुआ? Is it clear? So you have understand the working of the induction motor. Construction is clear. Stator, rotor, stator winding and rotor winding. Then I have explained you the working also. This what I have explained earlier. मैंने जो अभी आपको बताया पहले, वो सब क्या है उसका working. What is that working? That a rotating magnetic field is produced. Now this rotating magnetic field will cut the bars on the induction bar. Okay, and thus induced EMF is produced, and this induced EMF being rotor being short circuited, therefore induced EMF will produce induced current. This induced current will produce an MMF, thus rotor MMF is created. This rotor MMF will interact with the rotating magnetic field of stator and thereby produces a torque, and the rotor starts rotating. Now as per the Lange's law, the rotor should rotate in the same direction as that of the rotating magnetic field. Okay, but it never catches the synchronous speed. Its speed is always less than the synchronous speed, and the difference between that speed is called slip. अरे समझ में आया क्या नहीं आया? ठीक है, तो इंडक्शन मोशन का वर्किंग समझ में आ गया और आपको इसका कंस्ट्रक्शन भी समझ में आ गया. ठीक है, तो आज इतना ही. कल हम और इसके वोल्टेज कैसे जनरेट होता है, आगे इसको कैसे हम इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं, वो सारी हम लेंगे. थैंक यू. एनी डिफिकल्टी, एनी डाउट?